अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स तिब्बी मकदारें और पैमाइश लेक्चर नंबर 2 हमारा है। उसमें हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तिब्बी मकदारें। All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature. All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature. तमाम काबिल नुमाइश मकदारों को तिब्बी मकदारें कहते हैं। मसलन लंबाई, mass, वेट एंड टेम्परेचर। इसके बाद इसके टू टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी and derived quantities. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed, such as length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, and amount of substance. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed, such as length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of substance। वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अकस की जाएं बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। मसलन लंबाई, मास, वक्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और मादे की मिकदार बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज, दी क्वांटिटीज are expressed in terms of base quantities are called derived quantities such as area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge and electric potential etc. The quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities such as area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge and electric potential etc. माकुस मिकदारें वो मिकदारें जो बुनियादी मकदारों से अकस की गई हों माकुस मिकदारें कहलाती हैं। मसलन एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। इसके बाद पेज नंबर 4 पे हम जाते हैं। डिफाइन यूनिट्स। अब यूनिट की हम तारीफ करते हैं। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. ऐसी मेयारी मिकदारें जो नामालूम मिकदारों की पैमाइश या मुवाजने के लिए इस्तेमाल होती हैं यूनिट कहलाती हैं। ऐसी मेयारी मिकदारें जो नामालूम मिकदारों की पैमाइश या मुवाजने के लिए इस्तेमाल होती हैं यूनिट कहलाती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange specific scientific and technical information. दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट के निज़ाम के बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई, ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए। The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units or SI units.
और इन औज़ान और पैमाइशों पर पेरिस में मुनक़दा के 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हमगीर निज़ाम अपनाया गया जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। With the development in the fields of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange specific scientific and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units or SI units. साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट्स के निज़ाम के बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई, खासतौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए औज़ान और पैमाइशों पर पेरिस में मुनक़दा के 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हमगीर निज़ाम अपनाया गया जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हम बेस यूनिट पढ़ते हैं। बेस यूनिट, the units that describe base quantities are called base units. The units that describe base quantities are called base units. वो यूनिट जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। इसके बाद पेज नंबर 5। Base quantities and their SI units with symbols, बुनियादी मकदारें उनके यूनिट्स और अलामात। क्वांटिटी मकदारें, यूनिट्स यूनिट। क्वांटिटीज़ के नेम हैं, सिंबल हैं यानी अलामात हैं, और उनके यूनिट हैं और उनकी अलामात हैं। नंबर 1 लेंथ है, उर्दू में हम इसे लंबाई बोलते हैं और इसे डिनोट किया जाता है एल से। इसका यूनिट मीटर है, उर्दू में हम इसे मीटर ही बोलते हैं और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। मास है, हम इसे उर्दू में मास पढ़ते हैं और इसका यूनिट भी एम है, सिंबल एम है। इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इसे उर्दू में हम किलोग्राम ही पढ़ते हैं और इसे केजी से डिनोट किया जाता है। टाइम है, इसे उर्दू में वक्त कहते हैं, इसे डिनोट स्मॉल टी से किया जाता है। इसका यूनिट सेकंड है और इसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट है और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल आई है, तो इसका यूनिट एम्पेयर है, एम्पेयर को भी कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, रोशनी की शिद्दत, इसे एल से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो है वो कैंडेला है, उर्दू में भी हम इसे कैंडेला ही कहते हैं और इसे सी डी से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट केल्विन है और इसे के से स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, शय की मिकदार, इसे इसका सिंबल जो है वो एन है, स्मॉल एन, और इसका यूनिट जो है वो मोल है और इसका सिंबल भी मोल एम ओ एल लिखा जाता है। इसके बाद है डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स used to measure derived quantities are called derived units. The units used to measure derived quantities are called derived units. माखूस मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूस यूनिट्स कहलाते हैं। माखूस मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूस यूनिट कहलाते हैं और ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं और इन ऐसे यूनिट्स हैं और इनके सिंबल्स हैं, ये हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्पीड है, इसको हम उर्दू में भी स्पीड पढ़ते हैं और इसे वी से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है, उर्दू में हम इसे मीटर फी सेकेंड कहते हैं और इसे मीटर पर सेकेंड एम नेगेटिव एस लिखा जाता है। एक्सेलरेशन है, इसे उर्दू में हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं और इसे ए स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है, उर्दू में हम मीटर फी सेकेंड कहते हैं और इसको एम एस
-2/2 में लिखा जाता है। वॉल्यूम, इसे उर्दू में भी हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, तो इसे V से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर, और इसे m⁻³ से अलामात में लिखा जाता है। फोर्स है, फोर्स को हम उर्दू में भी फोर्स पढ़ते हैं और इसे F से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, और इसे उर्दू में भी हम न्यूटन पढ़ते हैं, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर को हम प्रेशर ही बोलते हैं उर्दू में भी, और इसे P से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो है वो पास्कल है, उर्दू में भी हम इसके पास्कल ही कहते हैं, और इसे PA से या न्यूटन पर मीटर से यूनिट लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं। डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर हम इसे उर्दू में पढ़ते हैं, और इसे यूँ लिखा जाता है किलोग्राम मीटर पर मीटर, ठीक है, या मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। चार्ज, इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज उर्दू में बोलते हैं, और इसे क्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट जो है वो कॉलम है, उर्दू में हम कॉलम पढ़ते हैं, और इसे C से R या AS से लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर इसके मतलब लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चन हो वो आप उसे पूछ सकते हैं, और ये लेक्चर अब्दुल मजीद साइंस एकेडमी यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा।